पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लेय महंत। अर्थात गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बना देता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। Hello everyone, I am Aishwarya Kulkarni, a CA inter-peer student, and today we are here because it's Mitkari sir's 65th birthday. So we are here to celebrate his 43 years of teaching and of leadership while nurturing more than 1,15,000 students of CA and CS. तो आइए इस मौके पे हम बात करते हैं CA PH मिटकरी सर के बारे में. He has done BSc Honours in Chemistry from Pune University, LLB, and also he is a chartered accountant. He teaches mathematics to CA foundation students and costing and financial management to CA intermediate students, and also advanced cost management and performance evaluation to CA final students. Also, the students to whom he has taught have reached far ahead on the career ladder, including the chairman of Nagpur branch of ICAI, RCMs and CCMs, president of ICAI, directors and chairman of different PSUs and government companies. तो आइए इस मौके पे कुछ बातें करते हैं पीएच मिटकरी सर से. Hello sir, wish you a very happy birthday and many congratulations on completing 43 years in teaching CA and CS students. Thanks a lot, Aishwarya. So on this auspicious occasion of your birthday, sir, we would like to know about your journey from a small town boy to what you have become today, that is a legend. Actually, I was married in 10th, and then because of that, my parents and my brothers had great expectations from me. So my elder brother, he asked me that he will have a best education, and that's why he admitted me in Ferguson College, Pune. So there I did 2 years for pre-university and BSc Part 1, and later on my brother was transferred to Nasik, so I was shifted to Nasik for another 2 years, and I did BSc in with chemistry principal subject from Pune University. And later on, after passing that, I came to Nagpur. In Nagpur, I wanted to do, because I wanted to become a teacher, so I wanted to do MSc in mathematics. But then Nagpur University said that your basic principal subject is chemistry, so you can't do in mathematics. Then I asked them to do in pharmaceutical chemistry because my principal subject was pharmaceutical chemistry. So they said no, because you are not B Pharm, you can't do M Pharm. So that way I decided then कि I should do LLB, क्योंकि घर के लोग बोलते थे कि अच्छा आर्ग्यूमेंट करता है, झगड़ लेता है, तो दैट्स व्हाई देन आई डिसाइडेड टू डू LLB. तो इनिशियली LLB का बहुत सीरियसली पढ़ाई किया था मैंने 3-4 महीने. मीन टाइम आजू बाजू के लोगों को लगता था कि अनएम्प्लॉयड ही है, तो कोई बोलता था टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर, कोई कोई बोलता था कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करो वगैरह. तो उस हिसाब से मैंने बैंक का फॉर्म भर दिया था, और उसमें मुझे एम्प्लॉयमेंट भी आया था. बट मीन टाइम मुझे स्टडी सेंटर नाम से एक इंस्टीट्यूट नागपुर में खुला था फॉर CA फाउंडेशन. दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज CA एंट्रेंस. तो उसमें मुझे पढ़ाने का चांस मिला. उसके बाद बहुत सारे CA के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आने लगे, एंड दे इंस्पायर्ड मी टू जॉइन CA. तो इसलिए आई जॉइन CA. दैट वे आई एम CA बाय चांस, नॉट बाय चॉइस. इन द मीन टाइम मुझे बैंक का एग्ज़ाम हो गया था, एम्प्लॉयमेंट भी आया था, लेकिन somehow I was not very much interested in banking job, so I continued my CA, and then after completing CA also I continued my teaching only. So I started my teaching to CA students even before I joined CA myself. Thank you, sir. Sir, so you have done science also, commerce also, and law also. Oh my God, all the three fields you have gotten into. So, sir, as a student, what was your favorite subject? Actually, as a student, my first love was mathematics. लेकिन उस समय ऐसा था कि मैथ्स के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं रहती थी, इसलिए सब लोग बोलते थे कि केमिस्ट्री करो तो अच्छी नौकरी वगैरह मिल जाती है इंडस्ट्री में वगैरह. तो इसलिए आई डिड केमिस्ट्री. बट इवन दो आई डिड केमिस्ट्री, माय नॉलेज इन मैथमेटिक्स वाज फार बेटर देन इन केमिस्ट्री, and that's why I wanted to teach mathematics, and I started my teaching career with mathematics only first. Initially I started mathematics for 11 12 science people, then uh, gradually CS students for mathematics started coming, and then there was no one to teach statistics
to them. So I had to take up statistics along with mathematics for CA. Then subsequently, I started teaching costing, then operations research, and then costing for final also. So, sir, you're a perfect blend of science, commerce, and law. So, from among these, how did you choose teaching as a career? Uh, Actually, when I was learning in third standard in a corporation school in my place, Karanjalat, uh, I had one very bad teacher. Oh. She was Mrs. Wankhede, and my handwriting was very bad. So she used to always scold me. She used to always say की तू दिसतो इतका सुंदर आणि तुझं handwriting इतकं घाणेरडं कसं काय? And for every small thing she used to beat me. Oh. So I always, when I used to sit in the class, I always would think that when I'll uh, pass my 10th, 11th, and after that I'll become teacher, and then this lady's sons and daughter will come to my class, and I'll beat them left Oh and my right. God. So that's how. Since then, I decided to become a teacher. But then uh, it may be because it is in my heredity. My father was also a teacher. बचपन के जो वो अपने ये रहते हैं ख्वाहिशें रहती है या कुछ वो तो बचपना रहता है बट लेटर ऑन आई नेवर बीट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास and unfortunately or fortunately that lady's sons and daughters were never my students. So from right from beginning I wanted to teach, and when I was student also, then also my classmates, roommates, they also used to come to ask for difficulties, and they always used to say that your convincing power is very good. Many times we don't understand what the lecturer says in the class, but we understand what you say clearly. So since then, I developed automatically my teaching, and then it was a natural thing that I became a teacher. So you were a born teacher, sir. Sir, you have taught costing, maths, statistics, financial management, OR, and information technology B. You're a phenomenal teacher in all these subjects. So, how did you manage to teach all of them? I started teaching with mathematics because my basic interest was in mathematics. The other subjects were added as and when there was a need for the faculty, like statistics. So when I was teaching mathematics, there was a 50% paper of mathematics and 50% of statistics for CA, but there was no teacher for statistics. So the students they were going to one of the professors of Institute of Science for learning that. So they used to go to learn statistics, but they were not satisfied. So they told me, sir, आप एक काम करो, आप राघवन सर के से जाके पहले पढ़ लो और फिर हमको पढ़ाओ. So I said that that Raghavan sir may not like it, but then still because of the demand of the students, I went to Dr. Raghavan. Presently, he was for a long time he was a professor in some American university. Once he came back and met me also, but that time I went to him and told him that my students they are from commerce background and somehow they are not able to catch up what you say. So they said that you go learn from Dr. Raghavan and then you teach us. So if you have any problem, then I'll not come. He gladly agreed. He said, no, you come. So I used to go to him in the afternoon for 1 hour. And then after, say, from 1 to 2, I used to go to his place. He was staying then in Gokulpet. I used to learn statistics, then used to come back at my home. Then I used to stay in Vivekanand Nagar, and I used to study myself whatever he has taught for 2 hours. And at 6 p.m., I used to go and teach to CA students straight in Bhide school for statistics. That's how I took up statistics. Then similarly for operation research, there was no good faculty, so I had to. And then that time I also had no faculty to learn from, so I prepared the entire subject myself and then started teaching. I still remember because it was a quite a procedural subject, so I had to study 3 4 hours a day and then deliver a lecture for 1 hour. But then once I prepare a subject, I prepare very nicely, so any student can ask any difficulty. And in case it somehow happens sometimes that I may not be able to reply, so I should tell them you just keep on asking the questions. If some of the questions if I am not able to solve then and there, I used to come home, then search for the answer, and then next day I used to satisfy them. So that's how in 1 or 2 batches you get expert in the subject. So gradually, similarly, I took information technology. When I started teaching, there were no computers in Nagpur. The subject was there, but there were no computers.
So I still remember I had purchased one book. It is called as a pop-up book. So when you open the book, the computer will pop up out of the book. Like वो बच्चों का रहता है ना वो pop-up हाँ animals वगैरह का किताब उस टाइप का. And that ओके book was very nice. It was very and it was explained in a very proper manner. इवन उसमें कीबोर्ड भी था तो उसको कीबोर्ड दबाए तो उसको प्रिंटर से भी ऐसा बराबर वो नंबर आ अच्छा जाता था तो दैट्स हाउ आई लर्न एंड देन आई यूज्ड टू टीच to the people and ओके it's one simple thing that as you go on teaching any subject हम्म it becomes more and more clear to you as a student you not be expert in the subject but when you start हम्म teaching you get more स्पेशलाइजेशन you get better knowledge of the subject because as a student you prepare for the exam many times but when you want to teach you have to be prepared you have to prepare in such a way that you are ready to answer any question so that's how in short it was all दैट्स need ग्रेट based whatever was the need I used to teach. एंड व्हाट अबाउट कॉस्टिंग सर In costing, there were a lot of problems with the students regarding understanding of the concepts of the subject and particularly boring teachers पढ़ाते थे. So then they decided कि the students many times requested me कि आप sir costing पढ़ाओ. So then I started teaching costing and it was very well accepted by the student even today. So we heard that you have done government job for more than a decade, and then after a point you took the decision that you'll take teaching as the mainstream career. So what led to the decision? Because the government job. It so happened that I started teaching from 78. आजकल जितने जैसे स्टूडेंट्स भर भर के आते थे को उस जमाने में वैसा नहीं था Hmm. बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते थे और उसमें भी ड्यूरिंग 85 86 बहुत ही स्टूडेंट्स की संख्या एकदम कम हो गई थी Hmm. तो देन आई थॉट कि इट इज़ बेटर इफ़ आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब और हुआ भी वैसे ही देर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन WCL so I applied they selected me and I joined. Okay. So, and that continued from say 1986 to 1989 and 1999. And Wow. everything was going on very well in WCL also. Hmm. Only thing is that I used to teach in the morning some classes, then 10 to 5 I used to do the job, and then in the evening after the job again I used to That is so do the hectic. classes. So it was quite hectic. So as in a government job, you know, you get promotions also. After every 3 4 years, you get promoted. Hmm. So and with the promotions, your salary perquisites definitely increases, but the responsibility also increases. Yes. So by 99, I thought that it is very much hectic because of the age. Also, I was feeling ki I cannot manage from right from morning 6 to evening 10. Hmm. So I decided to choose one of them, Hmm. and because teaching was my first love, so I decided to quit the job and come into teaching full time. So after that, there was no looking back since 1999 even till today. That's great. Your father was also a teacher, you are a teacher, and your sons are also great teachers. So, is this a dynastic profession? And also, you have a grandson. Do you expect him also to enter this field? It is all heredity. It is always said that teaching is a performing art, Hmm. and any performing art, that you cannot make a person to perform art. It has to be inborn only. Yes. So that way, it has percolated in me and after me in my sons and even my grandson, who is hardly 4 years old. Whenever he tells something, he narrates some incidents. It just appears that he's an excellent teacher. That's But then, really of course, neither I trusted this job on my sons, nor I will like to trust the job on my grandson. If he likes only teaching, then okay. But I hmm. wish that he should first complete his career, whatever career he likes to be. Right. That is always fine. You cannot, you should Hmm. not, and you should never trust any career on any of the kids. हम्म। सर मैंने आपसे पढ़ा है और आप जिस तरह जोक्स और कंसेप्ट को रिलेट करते थे दैट इज़ रियली फेनोमेनल मतलब मैंने जितने भी टीचर्स से अब तक पढ़ा है मुझे कोई भी ऐसा आपके जैसा दिखा नहीं तो सर आप वो कैसे मैनेज कर लेते थे The subjects which I teach normally they are very dry. So for example, mathematics, it's a very dry subject. So यदि अपन वही एक धुन में पढ़ाते जाएंगे सिर्फ सब्जेक्ट की भाषा हाँ में ही तो स्टूडेंट्स को बहुत बोर होता है और धीरे धीरे उनको नींद आने लगती है तो ये अब मेरी हैबिट ही बन गई कि कोई भी कंसेप्ट है तो उसको पढ़ाना है तो एक रियल लाइफ एग्जांपल
जो है बहुत ही सिंपल हो समझने के लिए और हम्म। लोगों को समझे भी आसान से, और थोड़ा सा ह्यूमरस भी हो, ऐसा अपने आप ही मुझे पढ़ाते पढ़ाते स्पॉन्टेनियसली याद आते जाता और मैं उसको बताते जाता। फिर उसके बाद कुछ जो रहते हैं, जैसे कि वो आप बहुत सारे लोग बोलते हैं दूध वाले का एग्जाम्पल देते हैं और हाँ। क्या हलवाई का एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या है कि वो एग्जाम्पल बार बार इसलिए आता है टीचिंग में कि उससे जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस, कॉस्टिंग, ये बहुत ही अच्छे से समझाते आता इट्स है। मोर बट रिलेटेबल तो ऑल्सो। हाँ, तो इसलिए जो जो कंसेप्ट रिलेटेबल होते हैं उसके एग्जाम्पल थोड़े रिपीट होते हैं, नेचुरली टीचर हाँ को हाँ। थोड़ा रिपीटेशन वाला आदत बन ही जाता है बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन अगेन ह्यूमर का तो ऐसा है कि आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और उसमें भी पर्टिकुलरली ह्यूमर की जो किताबें रहती है, बुक्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, वो पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और फिलोसफी में। ओके। तो फिलोसफी के और ह्यूमर के दोनों के उदाहरण इसमें बहुत अच्छे से बिठाते आते हैं। मेनी टाइम्स दे आर परफेक्टली, वो एकदम इतने परफेक्ट बैठ जाते हैं कि उसको यानी अलग करना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट लोग कंसेप्ट भले ही भूल जाए, लेकिन वो जोक याद आता है, उसके जोक्स बाद उनको हमेशा याद कंसेप्ट याद हो। रहते हैं आपके। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट जोक पे से कॉन्सेप्ट नहीं बनाता हूँ, कंसेप्ट से रिलेटेड जोक्स बताता हूँ ताकि वो परमानेंटली स्टूडेंट के दिमाग में अच्छी तरह से फिट रह जाए। इवन हमारे जो कुछ पास स्टूडेंट्स हैं, हम्म। वो भी याद दिलाते हैं, कभी मिलते हैं इनफॉर्मली तो याद दिलाते हैं, सर वो आपका वो फलाना जोक है, वो अभी भी हमको याद आता है कभी कभी। तो इस तरह से होते रहता है, बट इट इज़ ऑल स्पॉन्टेनियस, ऐसा जानबूझ के भी सोच साच के कि आज ये जोक क्रैक करने हैं और फिर उसको डालने हैं, ऐसा नहीं रहता है। वो टीचिंग के समय स्पॉन्टेनियसली आ जाता है, इसलिए हर एक क्लास में अलग अलग जोक्स रहते हैं। कुछ जोक्स जो रहते हैं वो कंसेप्ट रिलेटेड जो रहते हैं उतने रिपीट होते हैं, बट बाकी जनरल जो चलते रहते हैं लेक्चर में, वो मोस्टली रिपीट नहीं रहते। दे विल बी नॉर्मली ऑन द करंट हैपनिंग्स हम्म। इन पॉलिटिक्स, करंट हैपनिंग्स इन द सोसाइटी, उसके बारे में रहते हैं। सर ठंडी के सीजन में आई रिमेम्बर दैट वी यूज टू बी देयर इन द क्लास टिल 7:10 और 7:15, बट यू यूज टू रीच देयर एट 6:55 डॉट। सो सर आप कभी भी टाइम के आगे पीछे नहीं रहते थे, आप इतने पंक्चुअल रहते थे, इतने एंथुजियास्टिक रहते थे। तो सर आप ऐसा क्या कहते थे कि आप कभी भी मतलब हमेशा ही इतने पंक्चुअल आपने डिसिप्लिन पाला है क्लास में? वैसे इस चीज़ के लिए तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऐसा देखा जा गया था कि कभी एक आध बार मुझे 5 मिनट लेट होता है, हम्म। और मैं नॉर्मली तो आई गो डॉट एट द टाइम, बट देन कभी सपोज गलती से 5 मिनट लेट हो गया, तो नेक्स्ट डे से लोग जो है वो स्टूडेंट 10 मिनट लेट आना शुरू करते। फिर इफ आई मेक 10 मिनट्स लेट, देन दे विल मेक 20 मिनट्स लेट, एंड देयर इज अ लेक्चर आफ्टर लेक्चर, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू वेस्ट द टाइम। तो इसलिए मुझे पंक्चुअली आना ही पड़ता है, रादर पहले हर एक टीचर को पंक्चुअली आना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का भी ऐसा मतलब ये जैसा कंज्यूमर एंड सर्विस इस टाइप का जरा हो गया है। पहले का वो गुरु शिष्य वगैरह वो सब अभी नहीं रहा है, इट्स ऑल कंज्यूमरिज्म। और सर्विस प्रोवाइडर, टीचर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, स्टूडेंट इज अ कंज्यूमर, एंड दे आर सो मच अवेयर। फॉर एग्जाम्पल दे विल ऑलवेज आस्क कि टेस्ट वगैरह होंगे कि नहीं। राइट। तो हम तो लेते ही है टेस्ट, लेकिन इट इज सीन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट देर विल बी 100% अटेंडेंस, इन द सेकंड टेस्ट देर विल बी 60%, इन थर्ड टेस्ट, और 4-5 के बाद एकदम 10-12 स्टूडेंट आना इट्स शुरू हो जाते हैं। रिड्यूसिंग, राइट। तो उनका ऐसा है कि भाई हम हैप्पियर हो कि ना हो, तुम टेस्ट लो, यानी टीचर का ऐसा है कि तुम तुम्हारा जो जॉब है वो बराबर करो। सो फ्रॉम दैट, and it is also a good habit always to be on time everywhere, not only in the class I am on time, at most of the places I always see that I am on time। तो कभी कभी उसका मतलब कभी गड़बड़ भी हो जाता है। एक बार हमारे एक स्टूडेंट्स का मैरिज था उधर लता मंगेशकर लॉन में कहीं तो भी, अच्छा। तो वहाँ गए थे। तो उन्होंने टाइम बताया था 8 से 11 कुछ तभी, हम्म। तो हम लोग अपना 8 बजे पहुंच गए, क्योंकि क्लास खत्म की बोला उधर के उधर निपटा के आते हैं। हाँ। 8 बजे पहुंचे वहां, तो वो जो वो मंडप वाले जो थे वो टेबल वगैरह से ठोक रहे थे। हमने बेचारे फलाने की शादी है ना, इतने जल्दी कहाँ है, बोले दूल्हा 11 बजे आएगा बोले। तो क्योंकि बोले ये जो कम्युनिटी में बिलोंग करता है वो दुकान वुकान बंद करके बाद में आराम से आते। बोली आप इतनी जल्दी से कैसे आए, बोला हम कम्युनिटी में से नहीं है ना, हमारी दुकान बंद हो गई, हम चले आए बोले इधर। तो it is always good, and particularly for teachers and students, that they should be always in time। दैट्स ग्रेट। सर आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा रटवाने का काम करते हैं। दे डोंट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स, बट दे प्रेफर मोर ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, एंड ऑल्सो मीन्स इट हैज़ बिकम मोर एग्जाम ओरिएंटेड। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट?
यदि कंसेप्चुअली पढ़ते हैं ना तो एग्ज़ाम तो अच्छे से करते ही आता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका काम होता है। जैसे कि हमारे सी एग्ज़ाम प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, तो इसमें सिर्फ पढ़ के सिर्फ डिग्री लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है राइट। कि डिग्री तो अच्छी मिल जाती है लेकिन आपको कुछ भी करते नहीं आता है, तो इट इज़ अ वर्स्ट बराबर। केस। मतलब एक बार आप पास नहीं हुए लेकिन एक्सपीरियंस है तो इट इज़ गुड केस, बट पास राइट। हो गए और कुछ भी नॉलेज नहीं तो वो तो बिल्कुल दैट ही इज इवन वर्स। होपलेस केस हो गई है। क्योंकि इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू डोंट नो एनीथिंग, तो फिर इससे बेकार सिचुएशन कोई नहीं हो सकती है। राइट। तो इसलिए कंसेप्चुअल लर्निंग तो बहुत इसेंशियल है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से क्या होता है कि पेपर एक आध बार घुमा फिरा के आया, टफ आया, तभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा इंस्टीट्यूट का भी देखा गया है कि दे आर सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन पेपर्स। पेपर भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, बहुत रेयरली पेपर टफ आते हैं आजकल। और उसके चलते रटाने वालों का जो है वो अच्छा लगता है उनको कि बस रट लिया, वहाँ एग्जाम में जाके लिख दिया, हो गया। बट और वो जो थियोरी पेपर वाले हैं उनको तो थोड़ा बहुत ठीक है थियोरी के लिए कि यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर सो मेनी थिंग्स, तो वो निमोनिक्स वगैरह बनाते हैं। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव मच इन दिस मेमोरी टेक्निक्स एंड ऑल दैट, बिकॉज उसमें डबल मेमोरी लगती है आपको। एक बार तो वो कि वो निमोनिक्स काय के लिए है, फिर वो उसको राइट। याद करो, और हाँ। फिर हर एक निमोनिक को क्या एक्सप्लेन करना उसको याद करो, उसके बजाय वैसे ही पढ़ा तो आई थिंक कंसेप्ट समझ गए तो यू कैन राइट। एंड आई थिंक एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स कि भी आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखो। ऑफ कोर्स हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। अपनी लैंग्वेज का मतलब एकदम कौन सी भी लैंग्वेज नहीं, कि अपनी लैंग्वेज का मतलब ये है कि वर्ड्स आपके होने चाहिए, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। किसी कोई भी पढ़ाए या कोई भी किताब हो, कोई भी मटेरियल हो, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, सिद्धांत ये तो बदलते नहीं, वो तो वही रहते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये अपना अपना होना चाहिए। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट समहाउ अपने यहाँ पे अभी कैसा, राइट फ्रॉम स्कूल ऑल्सो, स्कूल से भी अपने को ऐसी ट्रेनिंग होता है। मान लो कि स्कूल में बच्चों को बोला कि ऐसे लिख के लाओ कोई तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो स्टूडेंट्स बेचारे लिख के लाते हैं, फिर मैडम वो चेक वेक करती है, नहीं करती है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपने जो लिखा हो तो सब ठीक है, अब वो सब डब्बे में रख दो, अब मैं लिख के देती हूँ, उसको याद करो और उसको आप एग्जाम में लिखो। अनफॉर्चुनेटली उसी को एग्जाम में अच्छे मार्क में मिलते हैं, जिसने ओरिजिनल अपना लिखा होगा। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट गिव मार्क टू सच स्टूडेंट। सो जिसके ओरिजिनल है उसको तो ज़्यादा मार्क देना चाहिए, जो रिपीटेड वही वही लिखा रहे उसको नहीं देना चाहिए। बट अपनी सिस्टम समहाउ ऐसी ही बनी हुई है। दैट्स वाई we don't surprise because of this system people get theory सब्जेक्ट में भी उनको 99 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि यानी वो प्रोग्राम तरीके से हो गया कि ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 8 पॉइंट लिखने का, ऐसा प्रोग्राम्ड वे से हो गया। जैसे एक कंप्यूटर को अपन एक प्रोग्राम देते हैं वैसे हर एक क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट के माइंड में एक प्रोग्राम बना के दे देते हैं, और somehow स्टूडेंट्स को भी वो अच्छा लगता, बट दे डोंट सी द ramification of all those in the future life, and that's why फिर comments आते हैं कि भी आज के इंजीनियर्स दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, आज के चार्ट अकाउंट्स दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है, तो दे गॉट द सर्टिफिकेट, बट उसके पीछे का जो नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज का जो अप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, दे लैक इन दैट, दैट इज मेन थिंग। So you have crafted more than 200 All India rankers in CA, 100 AIR in CS, including AIR 1, 2 and so on. So how do you feel about it, sir? एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो टीचर्स आर कैटलिस्ट, मेन तो स्टूडेंट्स को ही मेहनत करनी पड़ती है। उसमें काफ़ी हद तक प्रॉपर गाइडेंस मिला तो स्टूडेंट एआर आ सकते हैं। जैसे मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का, तो उसमें फर्स्ट आए गो कॉन्सेप्चुअली, फिर वो कंसेप्ट समझने के लिए जनरल लाइफ के जो एग्जांपल्स है वो हम देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स हम क्लास में सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्लास में 2 प्रॉब्लम किए तो उसके बाद स्टूडेंट को मार्क करके देते कि भाई ये 3 प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम घर से आपको करके लाने अलग कॉपी में। फिर वो करेंगे और नेक्स्ट डे मैं फिर से वही प्रॉब्लम करूँगा, तो उनको कुछ भी डिफरेंस लगा उसमें, तो आई ऑलवेज इनकरेज देम कि भाई आपको लगा कि आपका ज़्यादा सही है या आपका क्यों गलत है, ये नहीं समझा तो उन्होंने क्लास में पूछना चाहिए। एंड मेनी स्टूडेंट्स आस्क ऑल्सो कि भाई हमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो करेक्ट आपका क्यों है, हमारा गलत क्यों है। तो ये एक्सप्लेन करने से उनके कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये फॉलो करता है कि पहले होमवर्क करके आता है और फिर नेक्स्ट डे क्वेरी पूछता है, तो उसमें उसका सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रिपरेशन भी बहुत फर्स्ट क्लास हो जाती है। तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली दे कम इन मेरिट। तो इसकी वजह से
जैसे हमारे गौरव श्रीवागी नाम से स्टूडेंट थे, तो इवन दो ही वाज फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस, तो ही केम इन मेरिट, ही वाज मेरिट फर्स्ट रैंकर, ऑल इंडिया वाओ। फर्स्ट रैंकर भी थे हम्म फाइनल में, दैट टू। हम्म तो वो कैसे कर पाया आप, हाउ कुड हम्म यू केम फ्रॉम सच स्मॉल प्लेस एंड हाउ यू कुड अचीव दिस फर्स्ट रैंक इन ऑल इंडिया? तो ही सेड ओनली, सर हमने आपके जो प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो किए, टेक्निक्स। कि रेगुलर होमवर्क करना, हाँ आपको जो भी डिफ़िकल्टी है पूछना। इसलिए स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं देखता हूँ कि क्लास के बाद मैं बैठा रहता हूँ और पूछता हूँ कि भाई पूछो, जितने को भी पूछना है। इट इज़ बेटर इफ़ दे आस्क इन द क्लास। लेकिन कुछ लोगों को हेजिटेशन रहता है, कुछ लोगों की डिफ़िकल्टी उनको लगता है कि बहुत छोटी सी डिफ़िकल्टी, बाकी लोग हंसेंगे, तो इसलिए दे हेजिटेट टू आस्क। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदा होता है कि क्लास के बाद इमीडिएट वो आए और even in breaks also sir we have हाँ, seen that you sit there बिकॉज only। दैट इज तो ओनली टाइम अवेलेबल, तो इसलिए ब्रेक में भी बैठना पड़ता था, क्योंकि नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास है। तो right ब्रेक में भी बैठ के जितने भी डाउट वहाँ के वहीं उस दिन के डाउट उसी दिन क्लियर हुए तो हाँ ज़्यादा अच्छा। right अभी नाउ डेज ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, हाँ वो वीडियोस बहुत बार हम भेजते हैं, तो उसमें भी जो स्टूडेंट्स है वो व्हाट्सएप पे उनकी डिफ़िकल्टी भेज देते हैं, और मैं उनको व्हाट्सएप पे पहले पूरा सॉल्व करके डिफ़िकल्टी उनकी जो भी है भेज देता हूँ, और देन अगेन आई सेंड अ मैसेज टू देम कि इसमें आपको और भी कुछ डाउट है तो फ़ोन से पूछ ले, ताकि उसके पास रिटन में अभी है, तो वो दैट बिकम बेसिक फॉर द सॉल्यूशन फॉर डिस्कशन, और फिर उसको फ़ोन से हम ज़्यादा और एक्सप्लेन ज़रूरत है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से किया तो आई थिंक स्टूडेंट हैज़ अ फेयर चांस ऑफ कमिंग इनटू द मेरिट। So whenever you become successful, there are many leg pullers out there. So in your case, what were your experiences about it? एक्चुअली तो हर एक प्रोफेशन में होता ही है, बट हमारे प्रोफेशन में टीचिंग में कुछ ज़्यादा ही है। इसका कारण भी है कि देयर इज़ नो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। Right. आपको एक सिर्फ एक छोटा सा रूम, एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक है, तो दैट इज़ इनफ। Hmm. सो देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन, और फिर जो डेस्परेट हो जाते हैं कि भी अभी इनके बारे में क्या बोलना, कि व्हेन दे डोंट फाइंड एनी फॉल्ट्स, तो फिर कुछ तो भी गलत सलत बोल देने का, कि जैसा हर बैच में अफवाह उठती है कि मिड सर तो रिटायर हो गए, मिड सर तो रिटायर हो गए। तो लेट मी टेल यू ऑल कि देयर इज एटलीस्ट अनदर डिकेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई एम फिजिकली एंड मेंटली फिट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू टू टीच। देयर इज नो बार, बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, and then as long as student comes, I will teach, and I'm sure that student will come because they get what they want। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोफेशन है, इसमें तो लेग प्लस रहती है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। एट मोस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट निग्लेक्ट देम, और कुछ नहीं मिला मान लो तो कुछ भी अफवाह फैलाने का, जैसे नोट्स पुराने निकाल के बताने का, इनके नोट्स में ऐसा है, इनके नोट्स में ऐसा है। अरे भैया, पहले तो बहुत बार चलाते हैं कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, पहले तो ये नहीं समझता है कि भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, ये कोई लेजिस्लेशन नहीं है, इसमें अमेंडमेंट नहीं होती है। देयर में भी सम स्मॉल चेंजेस इन सिलेबस, और चेंजेस भी जो रहेंगे देयर भी सम एडिशन और डिलीशन ऑफ सम चैप्टर्स, बट देन एक चैप्टर का कुछ भाग इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में रखा और कुछ नहीं रखा, तो वो जो नहीं रखा वो कोर्स में नहीं, ऐसा नहीं रहता है। दे एक्सपेक्ट कि आपको वो भी आना चाहिए। तो जो भी आपके एग्जाम के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए, आपके फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, वो सब हम मटेरियल में हमारे रहता है। तो वो हमारे कंपटीशन वाले कुछ वही बता देते कि ये जो डिलीट हुआ है लेकिन फिर भी इनके इसमें, ये डिलीट हुआ है फिर भी इनके इसमें है। तो अब क्या है कि जो डेस्परेट लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं, यानी इफ दे कांट फाइंड फॉल्ट्स विद माय टीचिंग, तो फिर ऐसा कुछ तो भी निकालने का। स्टूडेंट्स लोगों का ऐसा रहता है कि भाई नोट्स में नहीं है, नोट्स में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नहीं होने के बाद इंस्टीट्यूट का, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट का जो प्रिंटेड उन्होंने सर्कुलर भेजा था, कि उसमें लिखा था उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में टैक्स इम्प्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरमीडिएट। लेकिन वो उनका जो सर्कुलर है वो आने के बाद कितने तो भी एग्जाम हो गए कि जिसमें हर एक में टैक्स इम्प्लीकेशन पूछते ही है। रीजन सिंपल है कि इफ यू अवॉइड और इफ यू जस्ट डोंट कंसिडर द टैक्स इम्प्लीकेशन, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल बजट में कुछ बचता ही नहीं बताने के लिए। तो अब वो जो सर्कुलर बनाने वाले हैं और जो मटेरियल बनाने वाले हैं वो क्या बनाते हैं, कैसे एंगल से बनाते हैं मालूम नहीं। लेकिन हम लोग क्या है कि भी मैकेनिकली सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। हम जब प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट को, तो उसको
एग्जाम के लिए तो बनना ही है, मतलब ही मस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, नॉट ओनली दैट ही शुड बिकम गुड प्रोफेशनल। वो एंगल से भी हमें पढ़ाना पड़ता है। तो जैसे मान लो कोई डॉक्टर हो गया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आ गया, 4-5 साल के बाद मान लो कोई और नया वायरस निकला और वो बोले मेरे सिलेबस में वायरस नहीं है तो मैं आपको ट्रीट नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये प्रोफेशनल डिग्री है। इससे जब जब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग सीए पढ़े थे, तो हमारे को तो कंप्यूटर का सीन ही था। तो कोई चार्ट अकाउंट बोले कि हमारे इसमें तो कंप्यूटर सिलेबस में था नहीं, तो आई शुड नॉट नो इट, तो आज तो ही कैन नॉट सर्वाइव। तो इसलिए चेंजेस आते रहते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री में क्या लिखा है सिलेबस में उतना ही नहीं आना चाहिए, यू शुड लर्न हाउ टू लर्न न्यू एंड न्यू सब्जेक्ट्स। दैट्स व्हाट अ स्टूडेंट शुड गेट फ्रॉम द टीचर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So you're so fit. What is the raz of your fitness? अच्छा, राजवाज ऐसा कुछ नहीं है। न मैं कोई जिम में जाता हूँ ना कुछ नहीं। थोड़ा सा लाइट मॉर्निंग वॉक, अगर थोड़ा सा योगा वगैरह एंड मेडिटेशन आई डू क्वाइट रेगुलरली। जब लाइव क्लासेस थे तब 7 बजे के क्लास था, उसके पहले भी मैं थोड़ा बीआरसी में घूमने वगैरह जाता था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट एक है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं उसमें यू गिव योर 100%, ऑटोमेटिकली यू रिमेन फिट। उससे ज़्यादा तो ऐसा राज वाली बात कुछ नहीं है। Also, sir, I've heard that you are an excellent cook. दैट इज आउटपुट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन में वैसे भी थोड़ा सा काम कम हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू मूव आउट एंड ऑल दैट। और बाहर का खाना पीना भी बंद हो जाता है, तो कि बाहर के खाने की याद आए तो फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लिए और वैसा खुद बना लिया सब। तो दिस इज नथिंग सीरियस, आई डोंट हैव अ सीरियस हॉबी ऑफ कुकिंग एक्चुअली, इट इज़ नीड बेस्ड। क्योंकि हम लोग जब नासिक में वगैरह रहते थे भैया के साथ, तो हम बैचलर लोग सभी थे। तो हम लोग खुद में इंस्टेड ऑफ ईटिंग इन द मेस वी यूज्ड टू ऑलवेज कुक एट होम। तो उससे थोड़ा सा आदत बन गई है कुकिंग की, बस नथिंग मोर देन दैट। What are your hobbies, sir? हॉबीज में तो एक तो रीडिंग हॉबी है पर्टिकुलरली। फिलोसॉफिकल बुक्स मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट फिलोसफर्स। एट वन टाइम आई वाज फैन ऑफ इवन आचार्य रजनीश, इज ऑल्सो कॉल्ड ओशो। जब हम लोग पुणे में पढ़ते थे तो तब आई रिमेम्बर जो बेस्ट सिनेमा टॉकीज था वहाँ का, नटराज और राहुल, उनका बालकनी का टिकट 1 रुपया रहता था सिर्फ। दैट वाज 1971-72। लेकिन ओशो के लेक्चर सुनने के लिए हम जाते थे आश्रम में, तो 20 रुपये टिकट था। यू कैन इमेजिन हाउ मच कॉस्टली इट वाज। बट स्टिल हम लोग जो है हफ्ते में महीने में 1-2 बार तो भी हम संडे को इतना बड़ा टिकट लेके जाते थे। एंड जो उनका भी जो लेक्चर देने का तरीका था, मेरे ख्याल से अननोइंगली वो थोड़ा थोड़ा उनका जो बीच में ह्यूमर डालने का, इवन ही ऑलवेज यूज्ड टू टॉक ऑन स्पिरिचुअलिटी, बट उसमें भी वो एक बारीक बारीक ऐसे जोक डालते रहते थे। तो वो आदत मुझे भी थोड़ी सी अपने आप आ गई, मतलब आई हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, बट आई वाज फैन ऑफ Rajneesh, so I used to read quite a lot of books. I had personally seen him. It is a great experience of life to see him giving a lecture. फॉर एग्जाम्पल उस मेरे को अभी भी एक सिंपल सा एक उनका जोक था कि बोले वो क्या करते हैं कि कोई भी जो पात्र है उसको एक नाम दे देते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन। मतलब कोई भी उनके जोक में आदमी ना रहेगा, उसका नाम मुल्ला नसरुद्दीन। तो बोले एक बार वो मुल्ला नसरुद्दीन सेकंड शो देख के आ रहा था रात को, और उसका हैबिट था रात को 12 बजे 1 बजे घर लौटने का। तो लौट रहा था तो उसको 2-4 चोर लोगों ने दबोच लिया और उसने एकदम जम के फाइट दिया, करीब आधा घंटा तक फाइट दिया। फिर दे कुड ओवर पावर, 4 लोग थे, वो बेचारा अकेला था, तो दे कुड ओवर पावर हिम। उसने उसका पर्स निकाला तो उसमें सिर्फ 50 पैसे निकले। तो फिर वो चोर लोग जो है देवर एस्टोनिश, वो बोले यार हद है, बोले 50 पैसे के लिए इतना लड़ा, बोले तू 2-4 हजार रहते तो हमारी जान लेता था। तो उसने बोला कि भाई इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, बोले मेरी माली हालत गैरों के सामने बयान न हो इसलिए मैंने फाइट दिया, 50 पैसे में थोड़ी फाइट दिया बोले मैंने। तो ऐसा वो एक एक जोक से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बताते रहते थे। तो समहाउ वो मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन वो अपने आप स्टाइल अपना बन जाता है। बिकॉज वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू लर्न इन योर चाइल्डहुड,
somehow it becomes your nature. Right. उसके बाद खैर I never went for meditation of Osho that time because our primary motto was to study, not to go in his ashram. But because he was a good orator, I used to like to listen to him. और उसके वजह से ही मेरे को फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर फिलोसफी में वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया. इवन कॉलेज में भी हम ऑफ लेक्चर हमको मिला तो फिलोसफी के डिपार्टमेंट में जाके उनके लेक्चर हम अटेंड करते थे. एंड देन वी यूज्ड टू आस्क कुछ झूठ पटांग क्वेश्चन पूछते थे हम वहाँ पे बिकॉज वी वेर नो वाइस इन द सब्जेक्ट. Sir, according to we students, the definition of a teacher is just P.H. Mitkari, sir. So, according to you, what should be the ideal definition of a student? आज के माहौल में सर्कमस्टेंसेस में मोबाइल इंटरनेट और ये सब किस में ना स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट शुड स्टॉप ऑल दोज थिंग्स एक्सेप्ट टू एक चीज़ में डालना चाहिए जिससे उसका नॉलेज बढ़ रहा हो, और दूसरा ऐसी चीज़ में डालना चाहिए टाइम जिससे उसका हेल्थ को इम्प्रूवमेंट हो. ऐसी कोई भी चीज़ जिससे नॉलेज और हेल्थ और थोड़ा बहुत हो सके तो उसके वेल्थ, ये तीन में से किसी में असर नहीं पड़ता, ऐसा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना हो तो ही शुड इन्वेस्ट. दैट इज वन. इसका मतलब हो जाता है कि उसका जो अटेंशन रहेगा वो फोकस रहेगा. Where the mind is without fear and the head is held high. Rabindranath Tagore. Why I am quoting this? Do one thing. Go to Google and search for P.H. Mitkari sir and search for his images. You'll see that in each of his picture, he has held his head high and with pride and gratitude. But despite of this, you're always so humble, sir, and approachable for your students. I've seen many people coming to you for academic tips, but also there are people who come to you for life lessons. By having such a detailed interaction with you, sir, we've got to learn that you're a perfect prodigy of all your subjects. We are really inspired and we should definitely imbibe these qualities from you, sir. Once again, a very happy birthday to you, sir, and many, many congratulations on completing 43 years in this profession of teaching. Thank you. Thank you, Aishwarya, and all the best to all the students for success in their life.